Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study On the Face of It by Susan Hill from the textbook Vistas for class 12. हम सारे important details देखेंगे in this part of the video and also explanation for some part of the play. So let's get going with today's video on the face of it. The story is about a teenage boy जिसका नाम डेरी है एंड क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल की जो हैंडीकैप होते हैं, जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं या मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उन्हें डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं. वी डोंट यूज द वर्ड हैंडीकैप एनी मोर. तो ये जो बच्चा है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? एसिड हैड फॉलन ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस. तो उसका एक साइड का फेस जो है वो बर्नड है. ओके, एसिड की वजह से वो बर्न हो गया है. एंड यहाँ पे द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज दैट ऑफ मिस्टर लैम. मिस्टर लैम के साथ प्रॉब्लम ये है दैट ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ बॉम्ब ब्लास्ट. We understand that Derry has got his share of counseling. जो भी उसको counseling मिली होगी, people have been telling him, you should be happy, you should be thankful. आप गिर सकते थे, आप mad हो सकते थे, यहाँ पे ये वर्ड आया ना, daft in your head, you may have turned crazy. तो बहुत सारे उसको सुनने को मिले हैं sermons and counseling sessions उसके हुए हैं, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया because he still feels that he has lost his identity along with the face that got burnt. Okay, तो यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ जाती है कि it's we normal people जैसे हम react करते हैं ना, तो इन लोगों के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था when there was a woman on the street at the bus stop. So she was talking to another woman और उसने whisper किया कि oh look at that face, and that's a terrible thing, that's a face only a mother could love. That means she was trying to say that he looked very ugly. And Derry ने ना उसका remark सुन लिया. He overheard. Okay, so when he overheard, he felt very bad about it, obviously. Okay, so he felt that it was very cruel for her to say this. Okay, so it is then that Mr. Lamb dismisses it as a casual conversation that was not worth considering. Mr. Lamb का मानना यह है कि लोग तो बहुत सारी बातें बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बात को, हर रिमार्क को, हर कॉन्वर्सेशन को सीरियसली लिया जाए. Okay, so he is advising him to keep his ears shut. Okay, और शायद इससे पहले डेरी को इस तरह से किसी ने एडवाइस नहीं किया. दैट्स व्हाई ही सेज you say peculiar things. Peculiar means strange. Okay, and that is when Mr. Lamb kind of challenges him.
ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ हिज कुकून ना, कि अपने वर्ल्ड में से बाहर निकल कर आए। तो बोल रहा है अगर तुम्हें अच्छी नहीं लग रही मेरी बातें, तुम जा सकते हो, द गेट्स ओपन। Alright, so here's a very important reference of the bees, because Mr. Lamb also has a hive of bees and he takes care of them. This reference of the bees, ये onomatopoeia का example भी है ना, कि जो sound bees निकालती हैं उसको buzzing बोलते हैं ना, the sound made by the bees is buzzing. But Mr. Lamb is of the opinion that they are not buzzing, actually they are humming. और हम मीन्स क्या होता है, हम का मीनिंग होता है टू सिंग। ऑलराइट, हमिंग इज सिंगिंग। दिस इज द सेकेंड रेफरेंस फॉर मैटर ऑफ एटीट्यूड, कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, आप एक चीज को कैसे समझ रहे हो, कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, कैसे रिसीव कर रहे हो। ऑलराइट, सो ही फील्स दैट bees buzz, everybody else says bees buzz, but according to Mr. Lamb, bees hum. एंड हमिंग मीन्स सिंगिंग। bees है जो साउंड निकाल रही है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम इट इज सिंगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैसेज कन्वेट देख लेते हैं। थ्रू दिस इंसिडेंट द ऑथर ट्राइज टू टीच अस दैट लाइफ ट्रीट्स अस द वे वी ट्रीट इट। ओके, म्यूजिक एंड नॉइज कोएग्जिस्ट। It is up to us to choose music and lead a cheerful life, or to pay heed to noise and make our life miserable. Alright, for some people it may be music, but for some people the same music may be noise. Okay, it's about us. I mean, हम पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, whether we are enjoying life, whether we are taking life in a positive light or not. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ एक कोटेशन भी लिखा था, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड। सेकेंडली, व्हेन लाइफ गिव्स यू चेरीज टेक इट एज अ पीस ऑफ केक। मीनिंग, बी हैप्पी विद लाइफ। अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, सॉरोज एंड जॉयस लगे रहते हैं, बट वी शुड बी हैप्पी अबाउट द वे life is. Further on the same page number 61, we see Mr. Lamb is saying, अब मैंने तो कभी नहीं रोका था आपको, gate is always open, फिर भी आप wall पे से आए। Then he said, this would have been trespassing. Trespassing का मतलब क्या होता है, when you enter into somebody else's property without permission। ठीक है, उसको trespassing बोलते हैं। देन डेरी एक्सप्लेन कर रहा है कि वो वॉल क्लाइंब करके क्यों आया था, बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू बी विद पीपल, बिकॉज उसको ये फील होता है कि लोग उसे देख के डरते हैं। तब यहाँ पे एक स्टोरी सुनाई जा रही है। नाउ दिस स्टोरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मिस्टर लैम्ब स्टोरी सुना रहे हैं उस मैन की, ओके, जो बहुत डरता था। नाउ दिस मैन वॉज वेरी मच अफ्रेड टू डाई। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बेसिकली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ये स्टोरी हम सुनने से पहले हम ये समझ लें कि मिस्टर लैम्ब डेरी को ये स्टोरी किस लिए सुना रहे हैं, जिससे कि वो अपनी शेल से बाहर निकले और ये समझें कि इट्स फाइन एंड वर्ल्ड विल रिमेन द सेम। आप डरते रहोगे तब भी वैसे रहेगा, अगर आप ब्रेव बनोगे तब भी वर्ल्ड वैसे ही रहेगा। सो ही वॉन्टेड डेरी टू शेड ऑफ हिज फियर, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सेल्फ हेट्रेड एंड लिव लाइफ फुली। सो ये स्टोरी से हमें समझ में आता है दैट वन कैन नॉट चेंज वंस डेस्टिनी। और डेरी को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, वो हंसता भी है, तो मीनिंग देयर इज अ चेंज दैट्स कमिंग ऑन हिम। अच्छा, अब हम स्टोरी देख लेते हैं क्या है। दिस स्टोरी इज अबाउट दिस मैन हु इज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ही फील्स कि ही विल डाई। हाँ, अगर वो बाहर निकलेगा तो आइदर अ बस माइट रन ओवर हिम और वो मर जाएगा, और somebody would breathe deadly germs on him और उसको इन्फेक्शन लग जाएगा और वो मर जाएगा, या डोंकी विल किक हिम टू डेथ, या लाइटनिंग, थंडर लाइटनिंग हो रही होगी, लाइटनिंग स्ट्राइक कर जाएगी एंड वो मर जाएगा, और he'll fall in love with a girl, girl will break his heart एंड वो इमोशंस में और परेशान होकर मर जाएगा, या बनाना स्किन पे स्लिप हो जाएगा और पीपल हंसेंगे उसे देख के। तो उसने इसका सोल्यूशन क्या निकाला पता है, दैट ही वुड स्टे इन टू हिज रूम फॉर एवर। ओके, उसने लॉक कर लिया डोर एंड वो पूरे टाइम अपने रूम में ही रहने लगा था। बट इंटरेस्टिंगली, अ पिक्चर ऑन द वॉल इन द सेम रूम fell down on his head and killed him. Okay,
इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होना ही है. व्हाट गॉड हैज प्लान्ड फॉर यू इट विल हैपन. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के मारे सारी चीज़ों को छोड़ के अलूफ हो जाएं और सबसे मिलना जुलना छोड़ दें या जिंदगी जीना छोड़ दें. हम यहाँ देखते हैं मिस्टर लैम क्या करते हैं. हाउ डज ही वाइल अवे हिज टाइम, बिकॉज वो भी लोनली पर्सन है. ही रीड्स बुक्स, ही सिट्स इन द सन, और हाउस इज फुल ऑफ बुक्स. ऐसा लगता है कि हाउस इज एम्प्टी बट बहुत सारी बुक्स हैं. और एक और बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे रेफरेंस है कर्टन्स का. घर में कोई कर्टन्स नहीं है बिकॉज मिस्टर लैम को लगता है जब हम कर्टन्स ड्रॉ कर देते हैं तो वी शट थिंग्स आउट एंड वी शट थिंग्स इन. So he likes to see the light and also the darkness. अच्छा पहले हम ये रेफरेंस देख लेते हैं, important रेफरेंस है ये. He likes windows without curtains. Okay, इसका मीनिंग क्या है? Why is so? Because unlike most people, Mr. Lamb does not have any curtains at the windows of his house because he believes that the curtains shut things out. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बाहर रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं नेचर की. whereas he feels that in order to live one's life completely up to the brim हमें natural beauty enjoy करना चाहिए. Instead he likes to experience the alternating phases of light and darkness and he likes to hear the wind. Okay, so जब वो ये बोल रहे हैं ना कि he likes to do this, he likes to do that, तब आप देखोगे डेरी भी कुछ अप्रिशिएट कर रहा है, कुछ एक्नॉलेज कर रहा है दैट ही लाइक्स द रेन. ही लाइक्स टू हियर द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ. ठीक है, अभी तक तो नेगेटिविटी थी ना जो हमें देखने को मिल रही थी डेरी के कैरेक्टर में. पहली बार वो बोल रहा है मुझे भी ये चीज़ पसंद है, आई लाइक दिस, आई लाइक द साउंड ऑफ द रेन. ठीक है, एंड देन वो आगे और अपना हार्ट ओपन कर रहा है मिस्टर लैम के सामने. एंड व्हाट इज ही सेइंग अबाउट हिज पेरेंट्स. When they feel that I'm not around, वो मेरे बारे में बात करते हैं कि अभी तो हम हैं, जब हम नहीं होंगे तो इसका क्या होगा. ठीक है, so Derry recollects the opinion of his family members and he's reminded of their pitiful attitude towards him. Mr. Lamb उसे encourage कर रहे हैं and remind कर रहे हैं कि because they are his parents, so actually वो protective हैं and they are worried about him. So he also reminds him of the positive things he has in his life, like strong legs, eyes, ears, tongues, brain, and advises him to set his mind doing things in order to be better than all the rest. So here we see now Derry is trying to find out about Mr. Lamb and he asks him how many friends does he have. Mr. Lamb क्या बोल रहे हैं? hundreds of friends. बट ये सच नहीं है. और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि दोनों की डेफिनेशन ऑफ व्हाट अ फ्रेंड इज, हु अ फ्रेंड इज डिफरेंट. ठीक है, मिस्टर लैम को लगता है जो भी आता है उनके गार्डन में उनसे बात करता है वो सब उनके फ्रेंड्स हैं. बट डेरी को ऐसे लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. यू शुड एटलीस्ट नो द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स ना. So why Derry is asking about whether Mr. Lamb has friends or not? Because he has noticed that he lives all alone in a big house and he also knows that the neighborhood is not very kind to Mr. Lamb. Rumors रहते हैं उनके लिए that he's mysterious and people are suspicious of him. And Mr. Lamb answers that people come to sit in his garden in summer and in front of fire in winter and kids come for toffee and apples and pears. Okay, so when he is asking him कि अच्छा बताइए if you have friends, उनके names बताइए, so he doesn't know their names. तब वो एक reference दे रहे हैं कि you don't know where I come from or even what my name is. So Mr. Lamb क्या बोल रहे हैं? Why should that signify? He feels names are not important if you are friendly with someone. Okay, so that means Derry understands that he does not have friends and he's a very lonely guy. Mr. Lamb says if they are not my friends they are not even my enemies, and if they are not my enemies they are my friends. पे भी एक important reference है. Derry को ऐसा लगता है if they are not friends they are nothing.
तो जब वो ये बोलता है ना लोगों के लिए, पीपल के लिए, दैट दे आर जस्ट नथिंग, तब यहाँ पे एक और हमें इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे हो रहा है चैप्टर से, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग। दीज काइंड ऑफ लाइन्स अगेन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो डेरी क्या बोल रहा है, ही हेट सम पीपल एंड मिस्टर लैम उसको एडवाइस करें कभी भी किसी को हेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे एक मेटाफर है, ठीक है, कंपैरिजन है हेट्रेड का एसिड से। जैसे एसिड पोर हुआ डेरी के फेस पे तो उसका फेस बर्न्ट हुआ, बट व्हेन वी हेट समवन तो हम अपने आप को हार्म करते हैं। सो मिस्टर लैम बिलीव्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, दैट मिस्टर लैम बिलीव्स दैट हेट्रेड इज मैन्स वर्स्ट एनिमी। Okay, and acid can only burn physically, but hatred burns us away emotionally and spiritually. So even worse than one could imagine. तो हमें किसी को भी hate नहीं करना चाहिए। And then Derry बोलता है, he is making a reference to this person who said something very inconsiderate। जब वो बोल रहा है ना कि I hate some people, तब वो बोल रहा है कि दिस लेडी जब वो आया था एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल से घर आया, तो उसने बोला ये यहाँ क्यों आ गया, इसको तो अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि अपने जैसे लोगों से मतलब क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड वुड दैट बी, जहाँ पे सब एक जैसे होंगे, है ना। मिस्टर लैम इज रेफरिंग टू अ वर्ल्ड proposed by one of Derry's neighbors who says that handicap should live amongst others like him। और मिस्टर लैम स्ट्रांगली डिसअप्रूव कर रहे हैं इस सजेशन को, बिकॉज ऐसे तो लाइफ मिजरेबल हो जाएगी एंड डिसेबल्ड एक्चुअली नीड अ वर्ल्ड ऑफ कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस। वो चाहते हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए जैसे और लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। एंड इसी रेफरेंस को देखते हुए हियर वील सी दैट मिस्टर लैम इज सेइंग एवरीथिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट। जैसे अगर आप अपने क्लास का ही एग्जाम्पल ले लोगे, ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन आर देयर, बट क्या आप अगर 50 बच्चे हो क्लास में तो क्या आप सब 50 सेम हो? एवरीबडी इज डिफरेंट। हाँ, सबको गॉड ने डिफरेंट बनाया है। सो पीपल विथ सिमिलर डिसेबिलिटीज आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। God creates each being as different from all others and special in itself. So Mr. Lamb means that under the superficial differences of appearance lies universality of all human beings। हम सब human beings हैं, ठीक है, फिर भी हम अपने आप में unique हैं। Derry is very much impressed by the way Mr. Lamb, advises things and he knows so many things। और उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है और जो एटीट्यूड है बहुत डिफरेंट है। ही आस्क्ड हिम कि आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। सो व्हाट डज ही से, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। सो बेसिकली watching, listening, thinking means observing. He observes a lot, and Derry also learns this from him that he should be observing things, okay? And then he says, suppose sometimes you are not here and I want to come here, then Mr. Lamb tells him that you are always welcome. If I am not there, gate will still remain open, somebody else would be here, ठीक है। यहाँ पे again a very strong message, everything's yours if you want it, what's mine is anybody's। So here we see that Mr. Lamb is a strong believer in universal brotherhood because he says that he is prepared to share all his belongings with others, okay। और वो ये भी believe करते हैं that everything a person has, जो भी किसी के पास होता है वो गॉड की बाउंटी में से आता है, गॉड की ब्लेसिंग होती है, तो वो हर किसी को बिलोंग करता है। दैट्स द रीजन ही नेवर स्टॉप्स एनीवन फ्रॉम एंटरिंग इनटू हिज गार्डन, ओके। बट यहाँ पे डेरी इज ऑल टुगेदर इनटू सम अदर जोन एंड ही सेज आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं यहाँ आऊँगा, बट और लोगों को प्रॉब्लम होगी। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट हिज फेस, okay। And then Mr. Lamb tries to make him understand again that उनके साथ भी होता है, सेम बच्चे जो एप्पल्स के लिए उनके गार्डन में आते हैं वो स्ट्रीट पे उनको टीज करते हैं, लेमी लैम, बट दैट्स फाइन, ही कंसिडर्स इट टू बी लाइक अ गेम, ओके। And then finally we see that
मिस्टर लैम गेट्स गोइंग और वो लैडर पे चढ़ के एप्पल्स तोड़ने लगते हैं एंड ऑल दैट. और डेरी क्या बोल रहा है उनको दैट ही इज ट्राइंग टू बी फ्रेंडली. डेरी को ऐसा लग रहा है कि उसको ट्रू फ्रेंड मिल गया है. तो वो मिस्टर लैम को बोल रहा है आप अपने आप से नहीं कर सकते बिकॉज यू आर फिजिकली नॉट फिट फॉर इट and you may fall down and you may die and things like that. Okay, so Mr. Lamb's strong denial of his loneliness makes Derry thinks him to be crazy. ठीक है, वो यहाँ पे बोलता है ना दैट यू आर क्रेजी, आप कैसी बातें अलग बातें करते हो, डिफरेंट बातें करते हो. ठीक है, लेकिन मिस्टर लैम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं दैट ही इज लोनली. सो व्हेन डेरी आस्क्स हिम द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो क्या बोल देते हैं, नेम्स से कुछ नहीं होता, व्हाट आर नेम्स. ओके, सो हियर व्हेन डेरी इज सेइंग कि आई वांट टू हेल्प यू विद दिस वर्क, ही इज ट्राइंग टू से दैट ही वांटेड टू बी फ्रेंडली विद हिम. ऑलराइट, तो मिस्टर लैम भी नहीं चाहते कि वो जाए, लेकिन बिकॉज इवनिंग हो गई है, लेट इवनिंग, तो डेरी क्या बोल रहा है, माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी. एंड यहाँ पे दो फ्रेजेस भी हैं, पीपल वरी, पीपल फस. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है. वरी का मतलब हो गया, ठीक है, योर पेरेंट्स वरी अबाउट यू. फस का मतलब क्या हो गया, जब हमें ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई पीछे पड़ रहा है हमारे, टू पे टू मच अटेंशन टू समथिंग और somebody that is unimportant. डेरी ने क्या बोला, मैं जल्दी से जाके बताकर आ जाऊंगा, 3 miles है, and I'll go and inform that I'm with you and I'll come back. But Mr. लैम को लग रहा है औरों की तरह वो भी चला जाएगा और वापस नहीं आएगा. So he does not want him to go. This is also like a challenge for डेरी कि अगर अब वो रुक गया, अब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया, then he will be able to come out of his cocoon. So here we see that Derry is taking it as a challenge. वो acknowledge करने लगा है he can do a lot many things. And here we'll see when Mr. Lamb says that do you have to agree with what people have to say, he is saying I want something that nobody has. अभी तक तो he was full of negativity ना, now he's got that positivity, that infectious positivity of Mr. Lamb. और वो क्या बोल रहा है, मुझे भी ऐसा गार्डन चाहिए, मुझे भी एक घर चाहिए, विंडोज जहाँ पे कर्टन ना हो, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. सो ही इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टर लैम्स पॉजिटिविटी. सो दिस शोज enthusiasm towards life. He is getting affected by Mr. Lamb's positive attitude, and he is a changed individual. And it seems like he has overcome his inferiority complex and पुअर सेल्फ रिगार्ड. और वो एक डिसीजन भी ले रहा है, ही रिजॉल्व्स टू पे अटेंशन टू ओनली व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड डिसाइड्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड हिम. तभी वो ये बोल रहा है वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, मिस्टर लैम बोल रहे हैं, एंड ही अग्रीज टू इट एंड ही डेस्परेटली वांट्स टू बी हिज फ्रेंड. दैट्स व्हाई ही सेज दैट यू नीड मी, आपको मेरी जरूरत है, यू विल बी डेड और अलाइव एंड नोबडी विल इवन केयर. एंड देन मिस्टर लैम रिफ्यूजेस दैट ही इज लोनली, that he needs anyone. But डेरी जब बोल रहा है अच्छा अपने फ्रेंड्स के नेम्स बताइए अगर आप लोनली नहीं है, then he says टॉम, डिक और हैरी. ठीक है, टॉम, डिक और हैरी भी एक इडियम है, हिंदी में बोलते हैं ना एरा गैरा नथु खैरा, तो उसका मतलब है कि पीपल हु आर इनसिग्निफिकेंट. ओके, कोई भी, एनी वन एंड एवरी वन. Okay, so then Derry says you are crazy, or Mr. Lamb says you are giving excuses not to come back. That's why you say that I'm crazy. ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है. मिस्टर लैम उसे रोकना चाहते हैं और डेरी को लग रहा है पहले उसे अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और फिर वापस आना चाहिए. और ये भी एक फीलिंग उसे आ रही है कि उसके पेरेंट्स शायद उसको वापस ना आने दें, बिकॉज स्पेशली द मदर इज ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट हिम. हियर वील सी इट सीम्स लाइक डेरी हैज टेकन अप द चैलेंज. और वो मिस्टर लैम को ये बोल के जाता है कि आई जस्ट गो एंड इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड आई कम बैक. ठीक है, ही टेक्स इट एज अ challenge. As a reader also we understand कि if Derry returns then he will be able to make a breakthrough from his cocooned world. ठीक है, लेकिन वो तो चला गया. अब यहाँ पे हम देखेंगे absolute silence हो गया, sounds of the garden again, meaning Mr. Lamb is very lonely. Or now we get to understand here
मिस्टर लैम्ब इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, ये वाला जो डायलॉग है यहाँ पे हमें पता चलता है हाउ लोनली मिस्टर लैम्ब वॉज. ही इज टॉकिंग टू हिज बीज ना, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो, आई विल कम बैक, they never do, though not them, never do come back, meaning he is displaying signs of loneliness and disappointment. उनको ऐसे लगता है कि लोग जाते हैं और ये बोल के जाते हैं हम फिर आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, बट nobody returns. ठीक है. इसके बाद सीन 2 आता है यहाँ पे, डेरीज हाउस. ठीक है. डेरी के घर में अब वी गेट टू सी एन एब्सोल्युटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ऑफ डेरी. ठीक है. यहाँ पे हम उसकी मदर से भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. उसकी मदर वी अंडरस्टैंड इज एन ऑर्डिनरी वुमन, एंड उनको ना सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि उनका सन एक इमोशनल अपहेवल से गुजर रहा है आफ्टर हिज एसिड एक्सीडेंट, और वो कंसर्न है लेकिन वो ठीक से इंटरप्रेट नहीं कर पा रही, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं अपने सन से, जिसकी वजह से डेरी को ऐसे लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि शी डज नॉट लव हिम एनी मोर. सो हियर यू नो आर्ग्यूमेंट हो रही है. डेरी बोल रहा है मुझे वापस जाना है मिस्टर लैम्ब के पास, बट शी डज नॉट वांट हिम बिकॉज अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें पता चलता है वो क्या बोल रही हैं कि 3 months पहले ही वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं और लोग मिस्टर लैम्ब के बारे में बोलते हैं कि वो मिस्टीरियस हैं, इसेंट्रिक हैं, क्रेजी है, एंड शी इज़ डाउटफुल अबाउट हिम. वो बिलीव कर रही हैं दूसरों के जो ओपिनियन है मिस्टर लैम्ब के बारे में उन्हें. और यहाँ पे एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है कि वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months. कभी ऐसा होता है ना कि घर में कोई बीमार होता है तो डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि जगह चेंज कर दीजिए इनकी, मीनिंग पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो जाती है जिससे एनवायरनमेंट चेंज हो जाए. तो यहाँ पे दीज पीपल हैव ऑल्सो शिफ्टेड 3 months बैक, तो हो सकता है वो डेरी की वजह से हो. एनीवे जब वो अपनी मदर को यहाँ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या बोल रहा है, वाई शुड यू बी अफ्रेड ऑफ अ मैन हु हैज़ अ tin leg, वो तो खुद ही हेल्पलेस है. एंड व्हाट आई लाइक अबाउट हिम इज़ दैट ही हैज़ अ ह्यूज हाउस, उनके घर में कर्टन्स नहीं है विंडोज़ पे, एंड ही हैज़ अ बिग गार्डन, और बीज सिंग करती हैं उनके लिए, एंड वो बात करते हैं बीस से एंड ऑल दैट. तो उसकी मदर को भी बहुत स्ट्रेंज लग रहा है. बट एज अ रीडर वी अंडरस्टैंड देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन हिज एटीट्यूड. तो उसकी मदर उसको रोकती रहती हैं बट ही डज नॉट लिसन. ये वाला जो डायलॉग है ना, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट. सो वी अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा एनकरेज किया मिस्टर लैम्ब ने उसके एटीट्यूड को चेंज करने के लिए. ठीक है. एंड द मदर फेल्स टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों वापस जाना चाहता है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ऐसी है कि उसको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड here again मदर के डायलॉग में she says I forgive you, it's bound to make you feel bad and say all these things, I don't blame you. तो वो सेल्फ पिटी उसके अंदर भर रही है. बट डेरी फील्स दैट ही कैन डू अ लॉट, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया है. हाँ. एंड ही वॉन्ट्स टू गो बैक. और आप देखोगे कि he says here if I don't go back there I'll never go anywhere in this world again. तो वो भी क्या कर रहा है, उस ये पूरे एपिसोड को एक चैलेंज की तरह ले रहा है. and he feels that he can live a meaningful life only by furthering Mr. Lamb's mission. For doing that, it was imperative to return to Mr. Lamb. So he goes back, and बहुत important है उसके लिए because here there is a new phase that marks Derry's life. Okay, so the second scene gets over here, and we see that he goes back to Mr. Lamb. In scene 3, we go back to Mr. Lamb's garden, and we see that Mr. Lamb is very lonely here. Or finally we see scene 2 में Derry insisted on returning to Mr. Lamb's garden to keep his promise. ठीक है. and he felt that he was Mr. Lamb's natural successor. successor कौन होता है, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी तो आप सक्सेसर हो. and had to carry on his mission. He did not want to let down Mr. Lamb, and because he had helped him to rediscover himself. मिस्टर लैम यहाँ पे आप देखोगे ही इज पुलिंग डाउन द क्रैब एप्पल्स, और तभी क्रीक मतलब जो
ब्रांच है वो ब्रेक करती है एंड देर इज अ साउंड ऑफ फॉलिंग डाउन। तो जो डेरी बोल रहा था ना कि आप अकेले ये सब करते रहोगे तो समटाइम्स यू विल फॉल डाउन एंड यू विल ब्रेक योर नेक एंड यू विल डाई। तो डेरी का जो अप्रीहेंशन था, मीनिंग जो एंजाइटी थी, that has proved prophetic because Mr. Lamb has fallen. Or when Derry calls out to him, he does not get any response, and perhaps we see that Mr. Lamb is dead. ठीक है, तो ना साइलेंस का रेफरेंस है ये, दिस पार्ट साइलेंस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंबॉलिक है ये। Mr. Lamb's silence at the end of the play suggests that he is dead much more before Derry reaches him. डेरी के बहुत पहले पहुंचने से पहले ही हैड फॉलन डाउन एंड ही हैड डाइड। ओके, तो साइलेंस हमें क्या शो कर रहा है, दैट ही वाज एक्चुअली लोनली, वहाँ कोई नहीं है। ही फेल डाउन, ही डाइड, बट देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हिम। दोबारा से देखो ये वर्ड साइलेंस यहाँ पे आया है। ऑलराइट, एंड देन डेरी गोज आउट टू हिम एंड ही क्राइज, and because he understands that he has lost a very good friend. So the play conveys a very positive message and should have ended on a similar note. Yes, as a reader you feel bad that towards the end Mr. Lamb dies, but अगर आपसे ये पूछा जाता है, बिकॉज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, इफ़ यू आर आस्क्ड वुड यू लाइक टू मॉडिफाई द एंड, तो आप ये लिख सकते हो कि दैट यू वांटेड द प्ले टू एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट and that I would modify the end with Derry reaching in time to hold the ladder and saving the life of Mr. Lamb. Both these characters would then work together to spread happiness in life. Okay? So that's all for today, children. I hope you're able to understand the chapter. Stay tuned for many more such videos, and of course there are other videos on my channel for all age groups. Do check them out. Take care. God bless you.